चलो खींचो। अरे ले भाई ऑटो स्टिल हो गया। रवि भाई स्टेट शॉट मिला कि नहीं? अरे ये थाला मैम वीडियो मिला नहीं वीडियो के लिए साथ में सर अभी इधर देखो जाना यार इधर देखो इधर इधर यहाँ से स्टार्ट करते हैं नहीं बीच से स्टार्ट एंड में राइट टर्न में हां फुल राइट हां फुल लेफ्ट हां बैक ड्रॉप सेंटर अरे सर राइट में आपके यस सर अभी इधर देखिए आपके राइट से आपके लेफ्ट में आपके लेफ्ट से सर राइट में यहाँ पे सेंटर थोड़ा क्लोज चेस्ट के इधर से हमने नहीं दिख रहा क्या कर स्टैंडिंग यहाँ से राइट यहाँ पे यहाँ से इसका इधर सेंटर में लगो ओके सेंटर दिस वन फर्स्ट सेंटर इधर सामने मुझे अलग से बुला के क्या फायदा होगा राइट ओके राइट गाइस दिस नाउ या राइट धीरे धीरे आपके लेफ्ट सेंटर धीरे धीरे से सेंटर हियर दैट्स नॉट सेंटर बट स्टिल या थैंक यू अभी आप थैंक यू हम इधर लेफ्ट लेफ्ट हम इधर राइट तो लेफ्ट राइट बोलना है वेट क्या मेरा सेंटर अच्छा एक सेकंड क्या नाटक है इधर फुल का ना यहाँ पे धीरे थोड़ा हाँ ठीक है आराम से यस सर यस सर सेंटर यहाँ पे Together for none other than Mahima Chaudhary. Hello. Would you like to say a few words? First of all, good afternoon. And yeah, I'd just like to wish all of you the very best. You're all very talented. I've seen Kiku and I've seen you. But y'all must be very, very nervous. But it's a great moment. I wish you the best. And Jaideep, I heard good things about you. So I'm sure this is going to be terrific. I wish you all the best. Iqbalji, I hope you make lots of money. Just share it with me. Yeah? Okay. Thank you so much. Now the wait is over and I know you all are excited to watch the trailer. It's a really fun character. बहुत मज़ा आया. The main thing is that whether you guys like the trailer or not, I hope you guys like the trailer. So, yes. Yeah. Seriously? Yeah. Feeling better. Yeah. I'm passing the... किकू सर, आप मूवी में है तो पता चल ही रहा है कि थिएटर में आफ्टर गैस छूटने वाला है. But still, can you just tell us about your role? Role में most importantly, I play son of a godman, and godmen have very important part of my life. आपको पता ही होगा. So no, the character is interesting, and I had a ball working with these people standing here, because I've been doing television for a while. मतलब I think 12-13 years I've been doing television. This world is new to me. Literally हम TV shoot करते हैं 10-15 दिन में, maximum 20 दिन में वो episode telecast हो जाता है. You know the response, you know what's happening. लेकिन ये जो है film बनती है, वक्त लगता है, फिर आपको हाँ देखने, फिर पता चलता है फाइनली हमने किया क्या है, एक पूरा का पूरा वो सीक्वेंस साथ में देखा जाता है. So this world is very new to me, but it's a cool world. You've been around, and yeah, and so I thoroughly enjoyed the process of the entire film being made, and I'm happy that I'm working with these guys. Yeah, thank you.
Thank you so much. Now I would like to request Priya to say a few words. Can you just tell us about your role, about your character? Definitely. Well, thank you everybody for being here today. And as Devendu and Kiku said, I hope you guys like the trailer. Well, my character, I'm playing a girl next door with a lot of dreams, lots of aspirations, and she wants to do something with her life. So once you watch the movie, you'll figure out, I think all our characters are very similar in their own way, but they all have their own aspirations and dreams from their lives. So it's a fun film, and it was a fun team. It was great working with Harshad, Devendu, Kiku. I mean, we got along so well. We didn't even realize how the time went by. We were chilling, enjoying, shooting, and it was literally one big party, and it was a lot of so it was a lot of fun, and now fingers crossed, hopefully you all like the movie as well and the songs, and let's see. So yeah. Thank you so much, Priya. Now I would like to request Harshad to say a few words. And Harshad, I would just like to ask you, how's your leg? Broken. Yeah. Mother, it's fine. I can stand now with two people around. And I think सब लोगों ने सब बोल ही दिया. I hope ट्रेलर आप लोगों को पसंद आया हो. वरना बाहर नहीं जा पाओगे. अच्छी फिल्म है, कंप्लीट फिल्म है, फन फिल्म है, यंग फिल्म है, मैसेज है, रोमांस है, गाने बहुत अच्छे हैं. आई थिंक पता नहीं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश अच्छी रही है, सब कुछ हमें तो अच्छा लग रहा है. अब पता चलेगा होता क्या है. एग्जाम का रिजल्ट जब आएगा तो पता चलेगा कि. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Can we see the And again. On public demand. Come. Come. अरे भाई. No, there's no significance about the world is going to end. There's a story about four guys, though four friends who come to know that the world is going to end in 7 days. The story is about how would they like to spend, or how do they spend their last 7 days. Mr. Kiku Sharda, you are such an esteemed comedian now. So what kind of a role? Is it a comic role or is it a different kind of role? सर जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया कि इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी, सो इट्स नॉट लाइक डेलिबरेटली क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और स्लैपस्टिक नहीं है, लेकिन अपने आप में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन लोगों के साथ होती है, जो इंसिडेंट वो मौका ही ऐसा होता है कि चीज़ें फ़नी हो जाती हैं. सो इट्स क्वाइट फ़नी, बट जैसे आपने मुझे और शोज़ में करते हुए देखा है जो तो उस तरीके की कॉमेडी नहीं है. कॉमेडी है लेकिन अलग है. डीप भी है, जितनी फनी है उतनी मतलब मैसेज उतना डीप भी है, उतना सॉलिड भी है. देवेंद्र जी, आपने काफी छोटी-छोटी फिल्में करके अभी हाई लेवल तक पहुंचे. आपकी जर्नी कैसी रही है? अच्छी रही है. लाइक यू सेइंग कि अगर हाई लेवल तक पहुंच गए हैं तो आई थिंक इट्स नाइस ओनली. सो या आई एम हैप्पी. हाँ, आई एम रियली हैप्पी. जैसे इन्होंने कहा छोटी छोटी फिल्में करके ऊपर पहुंच गए हैं, तो रियली या हाई लेवल, तो अच्छा लग रहा है. आई एम रियली हैप्पी. कैरेक्टर का नाम है सनी, हु इज़ लाइक अ जुगाड़ू इन द फिल्म. कोई भी नई स्कीम होती है, कुछ करना है, ये करते हैं वो करते हैं, ही इज़ द गाय जिसके दिमाग में सबसे पहले आइडिया आता है. He creates problem also and he solves it also with obviously his gang. And so yeah, he's more like a go-to guy. कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो he'll be the first one to come up with a solution or some तरकीब or something. Where was the film shot and in how many days? US. We took around 35 to 38 days to shoot this film.
and it was shot in Moradabad, Western UP, Goa, Mumbai. The next question, please. No, this is a very different theme here. Like we are saying 2016 the end. So this whole thing serves like a backdrop of the film. So how one fine day these four friends they get to know कि अच्छा भाई दुनिया खत्म होने वाली है, some asteroid gonna come and just finish off the earth. And ये लोग बताने की कोशिश करते हैं और कोई लोग इनकी बात पे यकीन नहीं करता है. So they are like whatever man, अगर कोई यकीन ही नहीं कर रहा है तो let's just go and start enjoying the life. 7 दिन बचे हैं और उस 7 दिन में भी ये लोग कितना लाइफ एंजॉय कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते. इट्स द स्टोरी ऑफ दैट. सो पंचनामा दैट वाज बहुत अलग है उससे. यार फ्रेंड्स तो हैं ही, वो तो हर फिल्म में ही रहेंगे, तो ये तो बिना फ्रेंड्स के फिल्म बनाना मुश्किल हो जाएगा. सो बट आई थिंक इट्स गोना बी बिल्कुल कुछ सेम नहीं होने वाला. इट्स गोना बी डिफरेंट. इसका जवाब आप देना चाहेंगे? सर इन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जहाँ तक नहीं, लेकिन बात वो है ही नहीं. जैसे देवेंदु ने भी बताया कि फिल्म इज़ अबाउट, हमें बस ये इन्फॉर्मेशन मिलती है फिल्म में कि ये एंड होने वाली है दुनिया. जैसे वो आप कोई और रेफरेंस लें तो उसमें एक्चुअली दे शो द वर्ल्ड एंडिंग और ये वो. पहले जब मैंने भी नाम सुना मुझे लगा कि यार कोई वर्ल्ड एंड, पर मुद्दा वो है ही नहीं. मुद्दा है कि भाई अगर दुनिया ख़त्म होने वाली है, आपके पास लिमिटेड वक्त है. वो 7 दिन है, 8 दिन है, 10 दिन है, 1 महीना पकड़ लो. अगर आपको कोई बता दे कि आपके पास इतना वक्त है तो आपकी प्रायोरिटी सारी बदल जाएंगी, सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी. आज हम 20 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, 20 साल आगे वाला लोन ले रहे हैं, इंश्योरेंस वो कर रहे हैं जो हमें इतना लंबा ले जाएगा. तो अब अगर आपको बता दिया जाए कि आपके पास वक्त इतना है तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप किससे मिलोगे, किससे बातें करोगे, किसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहोगे? What exactly will you do if you exactly know that this is the time that you have? So you want to enjoy yourself, you want to chill out with friends, you want to make sure that you give time to your family. What will you do is a big question mark जो इस फिल्म के द्वारा आंसर करने की कोशिश की गई है. यार हाँ वही मैं मतलब सोच रहा हूँ चालू कहाँ से करूँ ख़त्म कहाँ करूँ. ऑब्वियसली खुश हूँ और यार पता है क्या होता है, पता नहीं है, मतलब दिस इज़ हाउ आई थिंक. आई एम एन एक्टर एंड आई लाइक टू, मतलब अच्छा काम, मन का काम करना बहुत ज़रूरी है, फिर प्लेटफॉर्म कोई भी हो. एंड ऐसा नहीं है कि मैंने टीवी छोड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फिल्म ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दोनों करूँ, मतलब कुछ आइडिया नहीं है. बस ये है कि मन का काम मिले, जहाँ भी मिले अच्छा मिले और करने में मज़ा आए, और मज़ा बहुत आया है. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सबसे पहले यहाँ से चालू करना चाहिए था मुझे. Character के बारे में, as I said before, that she's just like every other girl. I think her aspirations, her dreams, like any girl, she wants to do big things, she wants to do things she loves, enjoys doing. So basically that's a character. I'm pretty sure most of the girls will be able to relate to it, and most of the people will be able to relate to it. And it's her journey with her friends, and how she starts seeing life in a different way when she finds out the world's going to come to an end, and her friends are always with her, and they're basically her support throughout. So she's very pampered, and yeah, it's her journey with her friends, and yeah. It was fun, actually. It was a lot of fun. The film, yeah. It was, I was shooting in UP for the first time. And and the experiences were amazing, very different. And so then we shot in Goa, the places, we went to different places, and it was a lot of fun with everybody. Everyone got along really well. It's a great team, and yeah, that's it. Last 2 questions, please.
Some real life inspirations also. नहीं, पर मैं वही बता रहा हूँ कि ये स्क्रिप्ट है जो ऐसी की ऐसी, इसमें कोई मेरे आने से या मेरे होने से कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो जैसी इनकी कहानी थी और जैसे लिखी हुई थी, हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वाज सपोज टू बी द सन ऑफ अ गॉड मैन। लेकिन इंटरेस्टिंग वही है कि ये चारों दोस्त अपनी लाइफ का कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो फंसे हुए हैं, उसमें उन्हें मज़ा नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली माई फादर्स ऑल्सो इन द फिल्म इज़ अ वेरी वेरी रिच मैन, एंड उम्मीद की जाती है कि अपने फादर का ये जो बिजनेस अगर कह सकते हैं तो उसको बेटा आगे बढ़ाएगा, लेकिन बेटा वो करना नहीं चाह रहा है। तो उसको जो एक मौका मिलता है थ्रू द फैक्ट के दुनिया 7 दिन में ख़त्म होने वाली है, जिस बात से ये सब कन्विंस्ड हैं और होने वाली है, तो किस तरह वो इस चीज़ से बाहर निकलता है। बट या आई मीन देयर इज़ नो रेफरेंस टू एनीथिंग, इट्स जस्ट कोइंसिडेंस अबाउट एनी अदर गॉड मैन इन्वॉल्व्ड। या जी 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 नहीं नहीं, आएंगे 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 बहुत जल्द। Any more questions? Done. Thank you so much, media, you. for all your Thank you, questions, thank and thanks to the entire star cast and the director for all the answers. On behalf of Jaideep Chopra Productions, Iqbal Attarwala, Shaz Media Entertainment, Nagma Khan, me Tia Joshi signing off. Thank you so much for coming here and making this afternoon more beautiful. Thank you. Thank you. थैंक Thank यू you. थैंक यू। अभी जो टेलीविज़न भी देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के सिर्फ 7 दिन बचते हैं और फिर ये जो हमारी धरती है ये ख़त्म हो जाएगी, तो आप अपने अगले 7 दिन किस तरह से बिताएंगे। और ये तो एक फिल्म में इन्होंने कॉमेडी सिचुएशन बनाया है और काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं, कीकू है और दिव्येंदु जिसको हम प्यार का पंचनामा में देख चुके हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत क्यूट फिल्म है। महिमा जी, अगर आपको मालूम पड़े कुछ ऐसा होने वाला है आने वाले समय में, तो आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने कहते हैं ना मुझे पूरी करनी है वो कर लेंगे आप? आई थिंक ये सभी के साथ होता है कि जो आपकी शुरू की ज़िंदगी है उसमें आप सोचते हो कि स्कूल कब ख़त्म होगा, फिर कॉलेज कब ख़त्म होगा, हम नौकरी कब करेंगे। नौकरी कर लेते हो तो उसी में आप इतनी जद्दोजहद रहती है और फिर आप ज़िंदगी को कभी इंजॉय नहीं कर पाते। आई थिंक एक लाइन है फिल्म में जहाँ वो बोलते हैं ज़िंदगी का असली मज़ा अब आ रहा है, और वो भी तब जब पता है सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो ज़िंदगी का मज़ा तभी आता है आई थिंक जब आप क्लोज़र टू, ऐसे तो एज वाइज आपको लगता है कि अब वी आर गेटिंग क्लोजर टू डेथ। सो आई थिंक जब लेटर इन लाइफ आप ज़्यादा इंजॉय कर पाते हो लाइफ को, बिकॉज इतने स्ट्रेसेस नहीं रहते कि ज़िंदगी में आगे क्या करना है। बट ये बिल्कुल विपरीत है हमारे सोच का, बिकॉज हम हमेशा आगे के बारे में अच्छे से सोचते हैं, मतलब सेविंग्स करते हैं, लोन्स लेते हैं, विंटर वेकेशन प्लान करते हैं, समर में वहाँ जाएंगे लोग पहले ही 10-10 महीने पहले टिकट्स बुक कर लेते हैं। और सडनली आपको बताया जाए कि कल के बारे में नहीं सोचो, आज के बारे में सोचो। हम लोग बोलते रहते हैं लिव फॉर टुडे, लिव फॉर टुडे, लेकिन नोबडी लिव्स फॉर टुडे, एवरीबडी लिव्स फॉर टुमारो। एंड इफ़ यू टेल देम टुमारो है ही नहीं, तो आई थिंक ये पूरी दुनिया ही उल्टी पुल्टी हो जाएगी। आई थिंक काम पे तो कोई जाएगा ही नहीं। Nobody, everybody says, oh, I love my work, I love my work, लेकिन कोई भी काम पे नहीं जाएगा। आई थिंक सब अपनी फ्रेंड्स या अपनी फैमिली के साथ अपने घर में, जिनके पास बहुत सारे घर हैं, वो डिसाइड करेंगे कि लास्ट 7 डेज गोवा में होने चाहिए या अमेरिका में होने चाहिए। तो ये डिसाइड करेगा विच इज़ द बेस्ट स्पॉट। आप अपनी लाइफ कैसे एंजॉय कर रही है? इसमें कोई फिल्में बहुत कम कर रही हैं। हाँ नहीं, I'm enjoying this phase of my life a lot, being at home. Events बहुत करती हूँ, बहुत घूमती हूँ। I think मैंने जो भारत दर्शन अब किए हैं वो पहले कभी नहीं किया था। ऐसी ऐसी जगह गई हूँ जहाँ मैं सोच भी नहीं सकती शायद मैं खुद जाती वेकेशन के लिए, बट क्योंकि इवेंट्स
के लिए जाती हूँ तो मैंने आई थिंक देश का कोना कोना मैंने देखा हुआ है, तो भारत दर्शन किया है Return on silver screen again anytime soon. या होपफुली लेट्स सी। जैसे मूवी में दिखाया गया कि 7 दिन रह गए तो क्या वो वैसे ही हालात चल रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में पाकिस्तान एक्टरों के साथ, उनको कहा जा रहा है कि बॉलीवुड से निकला जाएगी, तो आपको क्या लगता है उनके दिल पे क्या बीतती है उनका फ्यूचर बताने के लिए? आई थिंक दो तरह से आप सोच सकते हैं। एक तो जब आप देखते हो कि कुछ अटैक्स होते हैं हमारे जवानों के ऊपर, उनकी फैमिली के बारे में जब आप पूरा रिपोर्ट देखते हो और इतने यंग तो जाहिर है सभी देशवासियों को गुस्सा तो आएगा ही। और मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगी कि अभी जिन फिल्मों में वो ऑलरेडी हैं और उनके पोस्टर्स भी आ गए हैं, रिलीज़ पे हैं, उन पे गुस्सा नहीं उतारे, बिकॉज अब तो सभी सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करेंगे आई थिंक कास्टिंग के टाइम सभी डायरेक्टर्स, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब फिल्म उन्होंने बना ली है और वो हिस्सा बन चुके हैं। तो दोनों तरफ की बात मैं समझती हूँ आई गेस। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड के बड़े एक्टर सलमान हो गए या फिर ओम पुरी हो गए, उन्होंने सपोर्ट किया है उनके बारे में क्या कहना चाहिए? ज़रूरी है क्या सपोर्ट करना जिस तरह से? नहीं, ये हर डायरेक्टर के बारे में है, ये सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस हैं, किसी को एक ओपिनियन चाहिए किसी को दूसरा, तो ये इंडिविजुअल है। लेकिन खाली जिनकी फिल्में बन चुकी हैं उनके लिए अब खड़ा होना और बोलना, इतना गुस्सा निकालना आई थिंक उनके लिए बहुत अनफेयर है। आपके इंटरव्यू में ऐसा आपने कहा मैं एक माँ का रोल ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिले। आई थिंक बच्चों की फिल्म और ज़्यादा बननी चाहिए। हम लोग ज़्यादातर बच्चों को हॉलीवुड फिल्म्स दिखाते हैं, जितने भी मतलब एनिमेशन फिल्म्स होती हैं। आई थिंक इंडिया में टैलेंट है एनिमेशन फिल्म्स बनाने का, बच्चों की फिल्म्स बनाने का आई थिंक और बननी चाहिए। Ma'am, you have worked with Ajay Devgn in past, and which movie would you see first, Ae Dil Hai Mushkil or Shivai? शिवाय। Thank you so much.